So I would officially जी like to welcome everybody for today's meeting. Today is a very special session, and being a chamber of commerce, it is really special for me. हम लोग ऐसे सुनते रहते हैं कि यार बिजनेस में तकलीफ आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, things are going good, things are not going good. बट बीइंग इन दिस लाइन खास करके जिनकी फैक्ट्रियां हैं, और हम सुनते हैं कि भाई किसी का तो बिजनेस कोई भी सिचुएशन रहे, भाई बोलते हैं ना चढ़दी कला, कि अच्छा ही अच्छा चलता रहता है कम व्हाट में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई कितना भी जोर लगा लो कि भाई यार मैं इतना कुछ करता हूँ लेकिन उसके नतीजे नहीं निकलते हैं। तो ये वास्तु एक ऐसी साइंस है जो हमने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज, नॉट ओनली years or decades, which has been given to us by our ancestors, but somehow we have not been able to cash on it. So I think this is an effort from the Indian Chamber of International Business to bring back our culture and take it to the world. We all know what yoga has done for the world today, how it has changed everything, and I think now is the time for Vastu. जब हम छोटे थे, आई एम श्योर हमारी दादा दादी नाना नानी ने कहा होगा कि बेटा पढ़ने के टाइम पे सूरज की तरफ मुंह करके बैठा करो। तो देयर हैव बीन मेनी सच थिंग्स, खाने के टाइम पे ऐसे बैठा करो, वैसे बैठा करो। सो देयर वाज साइंस बिहाइंड इट, एंड देयर वाज ऑलवेज रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन समहाउ इट गॉट लॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक इंडियन चेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की छोटी सी कोशिश to help our fellow members, to help our fellow industrialists, to help our fellow Indians, and definitely people from the rest of the world. So what small changes we can do today to ensure that it helps us in our business and in our life. Our today's guest, Parag Avasti ji, has been to this science since a long time. He has changed the lives of many people. He's changed the direction of many businesses for the better, I'm sure. And I really hope that today's small initiative from our chamber ICIB side might be able to bring about small changes which might result in big difference in your life. Parag ji, welcome. I hand over to you. Please carry on. Yes, thank you so much, Manpreet ji. Thank you so much for your lovely blessings, the good words, the kind words, and thank you to the entire team who is here today. Of course, everyone is busy. I know that it's not easy for all professionals to take out time at 2 o'clock. But I thank the entire team of ICIB for being here and valuing the science. For me, it's more important the science is valued. So I just start the presentation, and for those who are here, let's start. So I had a client of mine. So basically, I am a telecom engineer and an MBA, and I would like to share to start with a story that I had a client, and I am in Bombay. He's also in Bombay. They have a factory in Bombay. They had a major issue that whatever products they were making, they were into real estate. I mean, they were into ready-made garments. Sorry, they used to manufacture the garments and they used to sell to all the shops. So whatever garments they used to manufacture, they used to go to the shop and they used to come back saying that now we don't want it. So they invested. They didn't take advance money. They had a lot of problems, and day in and day out for so many months it was happening that they used to make products, but either the deal was cancelled before it went up, or sometimes the deal even got cancelled after taking the products. The products used to come back. कि अभी हमको नहीं चाहिए. So this was happening, and when all we did was simply change the जो उनका final goods जो था, final product जो था, वो हमने थोड़ा सा I would say 4 feet राइट में हमने शिफ्ट कर दिया, और 4 feet राइट में शिफ्ट करते ही उनके पेमेंट रिकवरीज हो गए सारे, और उस बात को आज 5 साल हो गए, उनका एक भी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आया अभी तक. So these are the very simple and non-breakable changes you will see, and I'm sure that presentation के आखिर में आप लोग भी काफ़ी सारा कुछ सीख जाओगे. जब बेसिक बहुत ही सिंपल है, बिना तोड़ फोड़ के कर सकते हैं, और आप भी उनकी तरह अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक कंपनी की इच्छा होती है, मतलब वो बनती है इसलिए कि लोगों को सर्व कर सके और अपने प्रोडक्ट से लोगों को बेनिफिट कर सके, right? So we'll move. So today, what all things we will cover? We will cover the following things. Since these are all SMEs, so this presentation is specially made for SMEs. So products returning back, payment recoveries अगर नहीं हो रही है, क्योंकि कंपनीज में बैकबोन जो होती है, पेमेंट रिकवरी इज द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी.
खर्चे बहुत कभी ज़्यादा हो जाते हैं, सो विल टेक केयर ऑफ दैट, कभी आई गिव यू टिप्स फॉर दैट. क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट कभी भी उस क्वालिटी से नहीं बनता है. क्वालिटी उनकी बहुत, उनको लगता है कि अरे आई वर्क फॉर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोप कंपनी, और वो सोप उनके करेक्ट नहीं बन रहे थे, सही नहीं बन रहे थे. तो हमेशा प्रोडक्ट में कुछ फाइनल प्रोडक्ट, कुछ कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा वेरिएंट की वजह से काफ़ी उनके प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाते थे. सो विल सी हाउ क्वालिटी कैन बी मैनेज्ड. यूनिशन, अगर फैक्ट्री में हड़ताल हो रही है या देयर इज एनी लेबर प्रॉब्लम्स, एंड वी कैन एंश्योर दैट लेबर्स, द इवन एम्प्लॉइज ऑफ एनी स्टाफ, any company, any staff, they can work with each other lovingly, happily. They can take the onus, the responsibility among each other. Attraction of product in the market, it's attraction of product. आप जो भी बेच रहे हो तो लोगों को लगना चाहिए कि इनसे ही खरीदना है. ब्रांड बिल्डिंग, अगर आपको लगता है कि हम इस स्टेज पे आ गए, अभी हमको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, अभी हमको एक्सपांड करना है, अच्छे बड़े स्टेज पे जाना है, तो I'll give you tips for that also. These are simple, non-breakable, nothing. आपको कुछ यंत्र लगाना नहीं है, कुछ करना नहीं है. सिंपल लाइट्स, कलर्स, प्लांट्स हटा के, डस्टबिन शिफ्ट करके, टॉयलेट स्ट्रीट करके उसी जगह पर ये आपके काम हो जाएंगे. इट इज सो सिंपल. So first my question to all of you is, do you believe in Vastu? You can open your chat and let me know about it. We can talk and be honest. आप unmute कर सकते हो अपने आप को. Yes, unmute कर पा रहे हैं क्या? Chat. Yes, Sarabjit ji लिख रहे हैं. Yes, yes, Saurabh ji. Okay. So anyone who does not believe in Vastu, I'm Jignesh ji Shah. Yes. I believe in Vastu. Yes, Bankim ji. Great. Okay. So I just want to say that I, of course, believe in Vastu, but because of few people, of course, not people like you, the technique or the science gets blamed, if you know what I mean. Right, just because some people are not good or honest. Yeah. Right. इनफैक्ट मुझे भी आपने देखा नहीं अभी तक, मतलब जैसे अभी हम कैसे काम करेंगे. बट यस, अभी ये पूरा क्राउड जो है ना, पूरा बिलीव कर रहा है वास्तु में. आई ट्राइड बट देयर आर नो मेजर चेंजेस. नितेश जी, यस, सो नाइस, प्लीज बी ट्रूथफुल. क्योंकि मैं सॉरी, मैंने ये देखा है कि ना, जो लोग की लाइफ में तकलीफ नहीं आती ना, उन्होंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया. मतलब वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, मतलब अगर हमारी बॉडी ठीक ठाक है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे ना? हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास. पर जब भी जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो जिम्मेदारी लेता है, जो एक्सपांशन करना चाहता है, उसको लगता है कि सारी मेहनत तो मैंने कर दी, अब क्या मिसिंग है? ऐसी कौन सी चीज मिसिंग है जो मैं करूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि सब तो कर दिया मैंने. एंड देन दे स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स इट. एंड ऑफ कोर्स एज यू मेंशन सरबजीत जी के, हमने ट्राई किया पर इफेक्ट नहीं आया. और ऐसा हर जगह पे है, मतलब हर डॉक्टर, मतलब फिजियोथेरेपी ले लो, एलोपैथी ले लो, सब जगह पर, मतलब कोई फैक्ट्री में अच्छा रिजल्ट नहीं आता. मतलब हर एक जगह पे ऐसे लोग हैं, जो लोग नए हैं, स्टार्टअप्स है, जो लोग है कि अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मतलब पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है, इतनी जादू भी, इतना भी उनका हाथ में होता है, उनका जश होता है, यश. सो आई नेवर बिलीव्ड इन वास्तु. I am a telecom engineer and an MBA, and I personally never believed in वास्तु. मैं पता नहीं था, my mom did never believe in वास्तु. पता नहीं था कि वास्तु होता क्या है. और just one fine day I stumbled upon वास्तु. और मैंने सोचा चलो एक एजुकेटेड आदमी वही है जो रिसर्च करेगा, मतलब देखेगा सही है कि नहीं है. मतलब मुझे पता नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पता नहीं है. बिलीव नहीं करता तब कहूँगा जब ये काम नहीं करेगा. तो मैंने कुछ कोर्सेज किए और अभी फिर मैंने जॉब छोड़ दी. आई वाज वर्किंग विद वोडाफोन एंड आई वाज वर्किंग विद सीमेंस. सो वहाँ पर भी अच्छा करियर चल रहा था. एंड आफ्टर 10 years आई क्विट, एंड देन फ्रॉम लास्ट 8 years आई एम डूइंग वास्तु. और दिस इज वेरी 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 सिंपल. जब मैंने इसको डिटेल में रिसर्च किया तो पता चला ये जो 10,000 years पहले जो बुक में लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे मनी प्लांट रखेंगे तो ये हो जाएगा, या छोटे छोटे काम, तो मैंने देखा अरे वो तो हो रहे हैं सारे. अभी भी इस 10,000 years के बाद भी वो सब हो रहा है. सो लेट्स सी दैट कि 10,000 years के पहले जो हो रहा था अभी भी कैसे सच हो रहा है. So as we know that Lord Vishwakarma is the architect. हम लोग लॉर्ड विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं हम लोग, और वो क्या करके गए वो आज हमें पता चला, क्योंकि जो भी मैंने निकाला है ये सारा विश्वकर्मा जी की किताब से निकाला हुआ है. और ऑफ कोर्स मैंने मेरे गुरुजी से सीखा, तो उनका भी हाथ है. सो वास्तु व्हेन वी से, यूजुअली वास्तु क्या होता है कि बात करते हैं 8 दिशाओं में. आपने जो सुना होगा 8 डायरेक्शन सुना होगा, विच इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट. बट इन द स्क्रिप्चर्स 10,000 साल पहले जो बुक लिखी गई थी उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि इट शुड बी सीन इन 16 डायरेक्शंस. और हर एक डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया हुआ है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर.
और उन्होंने कहा कि वास्तु जो है ना 5 तत्व से बनता है। हर चीज जो इस दुनिया में है ना, हम भी 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। अगर आपका फोन है, अगर आपका लैपटॉप है, अगर आपकी पेन है, तो ये सारा भी 5 एलिमेंट से ही बना है, उसके बगैर नहीं बन सकता। सो ये 5 एलिमेंट्स क्या है? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई। अभी इस चक्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ब्लू में मार्क किया हुआ है, ये सारे जब 5 तत्वों से बना है, पर ये जो ब्लू से मार्क किया है विच इज अराउंड नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे पानी ने डोमिनेशन ज्यादा ले लिया है, मतलब वाटर एलिमेंट इज मोर डोमिनेंट। और हम समझेंगे कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम आगे समझेंगे। फिर जो ग्रीन कलर में मार्क किया है, तो हमें हवा, ये हवा है, मतलब पेड़ पौधे हमें हवा देते हैं। सो इसको मतलब यहाँ पे हवा का डोमिनेंस ज्यादा है, 5 तत्वों में से हवा ज्यादा है डोमिनेंट। जो रेड में मार्क किया है साउथ ईस्ट और साउथ, ये यहाँ पे फायर का डोमिनेंस ज्यादा है, इसलिए रेड में मार्क किया है। जो साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट येलो में मार्क किया है, वहाँ पे अर्थ का डोमिनेंस, मिट्टी का कलर के साथ बेज कलर की मिट्टी होती है, तो वो मार्किंग की है। और फाइनली जो वेस्ट है, ये स्पेस एलिमेंट है, जिसको मेटल भी कहते हैं, इसलिए इसको ग्रे में मार्क किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों? अगर अभी हम 2 देखेंगे 5 तत्वों में से, वन इज वाटर एंड वन इज फायर। तो पानी आप देखोगे, पानी हमेशा बहता है। जब हम पानी सोचते हैं ना माइंड में, तो हम सोचते हैं कि पानी तो बहता है। तो अब हमारी जिंदगी में पानी क्या है, मतलब हमारी जिंदगी में क्या चीज बहती है? थॉट्स, बहुत सारे विचार, थॉट्स, आइडियाज, है ना। सो थॉट्स एंड आइडियाज, ये जो कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में चलता रहता है, इट्स अ फ्लो है। क्लाइंट्स, क्योंकि बिजनेस प्रेजेंटेशन है, तो क्लाइंट्स की वॉक इन हमेशा, मतलब क्लाइंट आते हैं और जाते हैं, पैसा आता और जाता रहता है, मनी फ्लोज, क्लाइंट फ्लोज। तो अगर कोई कहे कि मान लो कि मुझे क्लाइंट की प्रॉब्लम है, तो जो नॉर्थ लिखा हुआ है वहाँ पे अबंडेंस इन क्लाइंट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मे भी कुछ गड़बड़ होगी, जिसके वजह से वो डायरेक्शन फंक्शन नहीं कर पा रही और यहाँ पे क्लाइंट्स नहीं आ रहे। जब हम आगे देखेंगे, तो जो भी आपके लाइफ में इशू है, अभी भी आप चाहे तो नोट करके रख सकते हो, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन के एंड में पूछूंगा आपको कि आपके लाइफ में अभी कौन सा वो एरिया है जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहते हो, पेमेंट रिकवरी हो गया, जो भी इशू है आपका। और फिर मैं आपको यहाँ पे बैठ के कहूँगा कि आपके इस डायरेक्शन में मे बी ये XYZ चीज़ें पड़ी होगी, उसको ट्रीट कर दीजिए। हाँ, उसके रेमेडी में मैं अभी प्रेजेंटेशन में ही दे दूंगा। सो पर अगर क्लाइंट्स की इशू है, तो यही देखना है, फिर कहीं और देखेंगे नहीं। ये इतना सिंपल और इतना प्रिसाइसली लिख कर गए उन लोग। अगर हेल्थ की इशू है, मतलब मान लो कि अगर कंपनी जो है आपकी, मान लो कि 3 लोगों ने अपना ये दिया है, कोटेशन दिया है, और 3 में से अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है कंपनी की, तो जो कोटेशन रिजेक्ट होते हैं वो आपके होंगे। अगर इफ योर कंपनी इज इम्यून टू कंपटीशन, आपकी कंपनी अगर कंपटीशन को इम्यूनिटी उसकी बिल्ट है, तो जो भी कोटेशंस जो आपको जो मिलने चाहिए 4 लोगों के बीच में, वो आपको ही मिलेंगे। इट मींस दैट यू कैन टेक ऑन कंपटीशन विद सक्सेस। नॉर्थ ईस्ट से विजन है, मतलब कि विजन इज आइडिया, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे आइडियाज हैं, और ये आइडिया मल्टी मिलियनर आइडियाज है। काफी सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे बनते हैं जो मतलब एक आइडिया ऐसे आ जाता है कोई भी प्रोफाइल में कि वो आइडिया सब कर देता है, मतलब काफी ग्रोथ सक्सेस देता है। तो ये विजन और आइडिया, ये जो डायरेक्शन है, जब भी यहाँ पे अगर ये आइडिया सटीक है, ये अगर डायरेक्शन प्रॉपर है, तो आपको ऐसी आइडियाज आती है which has a power to change the world। जैसे probably building of aeroplanes, जब प्लेन्स बने तो किसी को पता नहीं था कि कुछ उड़ भी सकता है। सो दिस एरिया, जब ये एरिया बैलेंस होता है, तो वैसे आइडियाज आते हैं। दिस इज सच अ पावरफुल जोन। अभी जो है नेक्स्ट ग्रीन कलर में है, विच इज डायरेक्शन ऑफ एयर। अभी हवा क्या करती है, मतलब पेड़ में हवा देते हैं, तो ये ग्रीन कलर में, तो हवा क्या करती है? हवा हम सबको जोड़ती है। अभी जो आप हवा ले रहे हो, जो भी आप सांस ले रहे हो अभी, ये हवा कल दुबई में थी, या कल कैलिफोर्निया में थी, पता है आपको कहाँ थी ये, या कल ये कहाँ जाने वाली है, नहीं पता, राइट। सो हम जो हवा ले रहे हैं, कल कहाँ थी और कल कहाँ जाएगी, हमें पता नहीं। इट मीन्स एयर ऐसी चीज है, हवा ऐसी चीज है जो हम सबको जोड़े रखती है, हम सबको जोड़ा हुआ है उन्होंने पूरे वर्ल्ड में। तो जब भी किसी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है, जब भी किसी कंपनी को चाहिए कि वो एक्सपांशन करे, अलग अलग कंट्री को टच करे, तभी इस डायरेक्शन को हम चेक करते हैं। अगर वो कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि एरिया बैलेंस्ड है, और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि ये डायरेक्शन बैलेंस्ड नहीं है, राइट। देन विनिंग एंड हैप्पीनेस, और ये एरिया ना, ये एरिया है थॉट प्रोसेस का, क्योंकि हवा है ना, हवा चलती है कांस्टेंट, तो चर्निंग होती है, जो थॉट प्रोसेस चलते हैं हमारे, कि अभी मैं ये मोबाइल ले लूं या ये मोबाइल नहीं लूं, अभी मैं ये वेबिनार अटेंड करूं या नहीं करूं, जो भी हमको चाहिए, ये मुझे कौन सा फोन चाहिए, उसका पिक्सल कितना होना चाहिए। तो जो भी डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, मुझे इस क्लाइंट्स को बिजनेस इस प्रोडक्ट से खरीदना है या मुझे उस प्रोडक्ट को खरीदना है,
तो जो क्लाइंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं ना, वो भी सोच रहे हैं कि मुझे इसी बंदे को बिजनेस देना है या किसी और बंदे को बिजनेस देना है। सो वो जो एंग्जाइटी है ना, अगर ये बैलेंस है तो क्लाइंट विल कम टू यू, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, इंक्वायरीज बहुत सारी आएगी पर कन्वर्ट नहीं होगी। अगर आपके लाइफ में इशू चल रहा है कि इंक्वायरीज बहुत आ रही है पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, देन दिस इज द एरिया टू बी लुक्ड अपॉन। अगर इंक्वायरीज आ रही है और कन्वर्ट हो रही है तो नथिंग टू वरी अबाउट, इट मींस दैट एयर इज बैलेंस्ड इन दिस एरिया, जैसे वैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। नेक्स्ट जो है फायर, तो अग्नि ना, फायर एक्चुअली आउट ऑफ द 5 एलिमेंट्स, फायर इज एन एलिमेंट विच इज द मोस्ट प्योरेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट। मतलब कि पानी गंदा हो सकता है, हवा गंदी हो सकती है, जमीन गंदी हो सकती है, स्पेस गंदा हो सकता है, पर अग्नि कभी गंदी नहीं होती। अग्नि गंदी क्यों नहीं होती? क्योंकि फायर विल बर्न आउट, फायर ना जला देगी सब, फायर सब बर्न कर जला देती है। तो इट मींस फायर इज द मोस्ट प्योर एलिमेंट। तो अगर कुछ भी इम्प्योरिटी हमारे लाइफ में है, या फिर मान लो जैसे हम बोलते हैं नजर लग गई, तो नजर लग गई मतलब कि किसी ने बुरा सोचा, या हम कहते हैं कि जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो अगर एंटीवायरस करेक्ट नहीं है, तो ये प्रोटेक्शन, अग्नि की जो प्रोटेक्शन है, ये ब्रेक होके उसमें आ जाएगा। सो फायर गिव्स यू पेमेंट रिकवरी, जैसे क्योंकि मैंने बोला कि पेमेंट रिकवरी जो होती है ना, हर बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा आएगा तो पैसा रोल होगा, और जैसे ही पैसा रोलिंग होगा तो वो और एक्सपेंशन कर सकता है। सो पेमेंट रिकवरी गिव्स यू प्रोटेक्शन फॉर एनी बिजनेसमैन, और ये अग्नि दिशा से आती है। अगर पेमेंट रिकवरी आपकी सही नहीं है, अगर मान लो कि आपके क्लाइंट जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर वो सही नहीं है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या ब्रांडिंग नहीं हो रही, नहीं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर कोई और उसका फायदा उठा के लेके जाता है, या ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, तो देन बी स्टी टू फायर एलिमेंट। ये सारा मैंने शास्त्र से निकाला हुआ है, इसमें मेरी कोई रिसर्च नहीं है, ये सारा बुक्स में ही लिखा हुआ है। देन स्टेबिलिटी को आप सुना होगा आपने काफी बार के, कुछ लोग ना 20-20 साल से फैक्ट्रियां चला रहे हैं, या उनकी कंपनी सेटअप है ऑलरेडी 20 साल से, पर वो लोग वही है जहाँ होने चाहिए। अभी भी वो बोलते हैं कि 20 साल पहले भी हम लोग यही कर रहे थे और 20 साल बाद में नहीं कर रहे। मतलब हमारे साथ जिन्होंने कंपनी शुरू की वो आज कहाँ की कहाँ पहुंच गई है, और हम आज यही हैं। जैसे कुछ जो जैसे रमन जी में बात करूं अगर, तो कुछ लोग जो है जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो कभी भी बिल्डर भी बन जाते हैं फटाफट, और कुछ लोग जिनका ड्रीम होता है लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पाते कि हम कभी बिल्डर बन नहीं पाए, कभी उनको इच्छा होती है पर हो नहीं पाते उन लोग। तो जो नेक्स्ट लेवल का जंप है ना, ये यहाँ से होता है, स्टेबिलिटी स्किल्स है, कि आप जो भी सोचो वो पूरा हो जाए, वो आप जो डिसीजन मेकिंग करो, डिसीजन मेकिंग करेक्ट हो जाए, ये स्टेबिलिटी से आती है। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और साउथ वेस्ट से एग्जैक्टली बगल में देखोगे तो लेट गो लिखा हुआ है, एक्सपेंस, मतलब अगर बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, अगर इस जगह पर आपकी फैक्ट्री में कोई मशीनरी पड़ी हुई है तो मशीन काम नहीं करेगी। ये मेरा ऑलमोस्ट 1000 केस स्टडीज में मेरी रिसर्च है कि यहाँ पे मशीनरी पड़ी हुई तो काम नहीं करेगी, यहाँ पे आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टाफ बैठा है तो वो छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप बैठे हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि साउथ वेस्ट इसी यही एरिया है, तो कभी भी गलती से साउथ वेस्ट में बैठ जाते हैं तो कंपनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। सो ये एक जगह जाने की है और एक जगह लाने की है, जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट। जैसे मिट्टी होती है, तो अगर जमीन अगर स्टेबल है ना, तो आप अच्छे से उस जमीन पे रोड पे दौड़ सकते हो, पर अगर दलदल है ना, तो दलदल में आप नीचे गिर जाओगे। बस ये वही डिफरेंस है साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का। एक पक्की सड़क है और एक दलदल है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साउथ वेस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। और फाइनली स्पेस एलिमेंट कहते हैं, स्पेस एलिमेंट की आपने जितनी भी मेहनत की है अभी तक, उस मेहनत का आपको फल मिला कि नहीं मिला। हम हमेशा बात करते हैं। हाँ, Can you just once again tell the difference between south and southwest? एक दलदल कौन सी बोली थी और एक साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ना? हाँ, यस। तो देखिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है ना, अभी जो ऊपर लिखा हुआ है SSW लिखा हुआ है जहाँ पे, इस जगह पर, ये डायरेक्शन लेट गो की डायरेक्शन। लेट गो मतलब कि अभी जैसे मान लो कि अगर अभी आप जहाँ बैठे हुए हो, कभी घर में हो, ऑफिस में हो, अगर यहाँ पे एक टाइल्स लगी हुई है समझ लीजिए, तो अगर मान लो कि यहाँ मैं आपको कहूँ कि दौड़िए, तो आप फुल स्पीड में दौड़ सकते हो, करेक्ट, बिना सोचे, मतलब विदाउट एनी सेकंड थॉट, बिना सेकंड थॉट के आप यहाँ पे अच्छे से दौड़ सकते हो। पर अगर मान लो कि अगर आपकी जमीन पे थोड़ा सा पानी गिर जाए, तो आप क्या करोगे? आप बहुत संभाल के कदम रखोगे। तो जिन लोगों का साउथ वेस्ट बैलेंस्ड होता है, मतलब उनका अर्थ एलिमेंट जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी बैलेंस होती है, या ये एरिया बैलेंस होता है, तो उन लोग जो भी डिसीजन लाइफ में लेते हैं ना, वो डिसीजन उनके बहुत अच्छे से, मतलब वो डिसीजन लेंगे, सक्सेसफुल हो गया, फिर नेक्स्ट डिसीजन लेंगे, सक्सेस। हम सोचेंगे ये ऐसे कैसे आगे जा रहा है,
इसमें कुछ है ही नहीं, पर वो जो डिसीजन ले रहा है सक्सेसफुल हो रहा है, उसको रिसोर्सेस मिल रहे हैं जो उसको पूरा कर सके। और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या है, ये बगल की डायरेक्शन, ये लेट गो की डायरेक्शन है। मतलब लेट गो मतलब यहाँ पे जब भी जो भी चीज रहेगी ना वो चली जाएगी। ये मतलब आपके जो, जैसे मान लो हमारे बॉडी में एक एनस पॉइंट, हम जो भी खाते हैं ना तो वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेशन जो भी नहीं चाहिए हमें, जो न्यूट्रिशंस नहीं है, वो सारा हम निकाल देते हैं सुबह, और उससे हम लोग क्या करते हैं, हम फ्रेश फील करते हैं, वी फील रेजुविनेटेड, वी फील हैप्पी जब वो निकलता है तभी। तो सिमिलरली ये जो पूरी प्रॉपर्टी है हमारा, प्रॉपर्टी में आप कभी हैप्पी हो, कभी आप बहुत उदास हो, कभी आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे, तो जो वेरियस इमोशंस है ना, ये सारे इमोशंस ये लेट गो से निकलते हैं। मतलब ये लेट गो मतलब एक डिस्पोजल की जगह है, ये बाहर जाने की जगह है। तो जब भी ये बाहर जाने की जगह है, तो यहाँ पे जो भी मान लो बहुत सारे, क्योंकि मैं जब भी एसएमईज के साथ काम करता हूँ ना, तो उन लोग कहते हैं कि ना साउथ वेस्ट में हमें तो बताया गया था कि वास्तुवाल ने बोला था साउथ वेस्ट में बैठे हो, और वो क्या 16 डायरेक्शन पे काम नहीं करते और लेआउट्स पे काम नहीं करते, तो वो अंदाजे पे आपको बोल देते हैं कि साउथ वेस्ट है। और गलती से जब आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बैठ जाते हो, मतलब हार्डली एक 10 डिग्री का फर्क है ये, तो 10 डिग्री थोड़ा सा भी आप लेफ्ट पे बैठ जाते हो, क्योंकि वो लेट गो का है, क्योंकि इननेस पॉइंट है। तो वहां पे अगर इंपॉर्टेंट क्लाइंट की फाइल्स भी रखी है तो सारे क्लाइंट आपके लाइफ से चले जाएंगे। या आप अगर आप भी देखो, अगर आप जहाँ बैठे हो भी ना, जहाँ पर भी आप हो, आपकी ऑफिस, आपके फैक्ट्री, वहां पे आप देखिए कि 210 डिग्री के आसपास 195 टू, जहाँ पे मैंने 2110 लिखा हुआ है, देखो डिग्री पे चक्र पे 210 लिखा हुआ है, तो 205 से 215, 205 से 215, मतलब कभी भी आप कंपास चलाओगे घर के सेंटर से, अभी हम बात करेंगे आगे, घर के सेंटर में जब भी कंपास चलाओगे तो जहां पर भी 205 से 215 आ रहा है, उस जगह की चीजें कभी हम यूज में नहीं लाते हमारे घर में, क्योंकि वो सारी हमारे माइंड में वो जा चुकी है। जैसे बच्चे जब भी अगवा होते हैं ना, तो जिन बच्चों का प्ले रूम वहाँ होता है, तो बार बार वो पूरा दिन वहीं स्पेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे अगवा हो जाते हैं। मतलब ये लेट गो, ये सब जाने की दिशा है। तो यहाँ पे अगर हेड ऑफ द ओनर भी सोएगा अगर, तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाए, मतलब कि उसके सारे डिसीजंस नेगेटिव हो जाए। भले वो पॉजिटिव सोच रहा है, पर धीरे धीरे ओवर द इयर्स इट विल स्टार्ट टर्निंग आउट टू बी नेगेटिव। राइट, दिस इज फाइन। Okay, so it's 190 to 215 degree to be precise, right? हाँ, precisely it's 205 to 215. Okay. 205 to 215. यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं रखते हम, मतलब ये फ्लश आउट की जगह है इसके लिए। Okay, but आपके इसमें तो ऐसा लग रहा है कि 190 भी है ना, एक डायग्राम देख के तो 190 से एक्चुअली ये ना, तो इसमें ना अगर हम देखेंगे ना, तो जो S7 दिख रहा है, S7, yes. मतलब S6, जैसे अभी यहाँ पे ना S6 में जो एनर्जी है, मतलब ये वास्तु पुरुष मंडल है ना, अब यहाँ पे मैंने 16 डायरेक्शन लिखा है, पर जब डिटेल में बात करते हैं ना, तो डिटेल में ये 45 एनर्जी से बना हुआ है। तो S6 जो एनर्जी है ना, वो गंधर्व, ऐसे गंधर्व देवता जो है, गंधर्व एनर्जी बोलते हैं उसको, सो वो ये इफेक्ट नहीं देता है। पर S7 जो लिखा है, अगर S7 में अगर आप ऐसे चीजों को बांट दोगे तो S6 S7 है, तो S7 जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है भृंगराज देवता की। और भृंगराज जो है ना, भृंगराज देवता या एनर्जी जब बोलेंगे, मॉडर्न साइंस में एनर्जी कहेंगे उसे, तो भृंगराज की एनर्जी का फंक्शन ये है कि वो सब लेट गो कर लेता है। जैसे माफ करना, कुछ लोग ना माफ नहीं करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं, सालों साल 20-20 साल माफ नहीं करते लोगों को। तो जो माफ करना है कि आई एम सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म, या आई एम सॉरी, वो जो सॉरी है ना, वो SSW से आता है, कि सही जगह पे छोड़ देना और सही जगह पे पकड़ के रखना। वो जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है कि चीज कौन सी चीज पकड़नी और कौन सी चीज छोड़नी, वो यहाँ से आती है। So S6 is still good. S6 is very good. S6 एक्चुअली गंधर्व जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि गंधर्व है ना, हमें इंटॉक्सिकेशन देते हैं। जैसे मैं जब भी म्यूजिशियंस के लिए या सेलिब्रिटीज के लिए काम करता हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर S6 जो डायरेक्शन है, मतलब मैं जब 2 स्केल लेआउट पे काम करेंगे ना, तो S6 पता चल जाएगा कि ये 3 स्क्वायर फीट जो ये S6 है, ये 10 स्क्वायर फीट S7 है। तो S6 में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख दिया या किसी की फोटो रख दी, तो ऑटोमेटिकली ही विल स्टार्ट बीइंग गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड बाय व्हाटएवर ही डज। ही विल बी हैप्पी इन अ हैप्पी स्टेट। So S6 gives happiness, happy state, intoxication, and S7 gives let go. Okay, thank you. And अगर साउथ, हाँ 205 to 215 बोला था आपने, राइट? S7 205 to 215, मतलब एक प्रिसिजन, अगर आपको अंदाजे पे करना है तो 200 से 220 पकड़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चलता है वास्तु में, तो आसपास आपको दिखेगा, आपको ना, आप जब भी इस डायरेक्शन में जाओगे ना, तो आपको 4 चीजें ऐसी मिलेगी जो आप यूज नहीं करते। अगर वहाँ AC होगा तो AC कभी काम नहीं करता होगा,
अगर वहाँ पे आपका हीटर है, आप मतलब ये चेक कर लो, आप मतलब मुझ पे बिलीव करो भी मत, आप ये आप ही जब चेक करोगे ना आपको पता चलेगा कि इस दिशा में, इस डायरेक्शन में 205 से 215 के बीच में जो भी चीज रखी है आपने ना, यूजुअली उसमें खर्चा डबल, मतलब खबर नॉन स्टॉप खर्चा देती है। वॉशिंग मशीन हो, चाहे एसी हो, चाहे मतलब आपकी तिजोरी हो, तिजोरियां लोगों की खाली हो जाती है वहाँ पे। सब जा रहा है, सब जा रहा है, सब जा रहा है, तो जाने की दिशा है ये। You can check it yourself also, you can check it. सब अभी जितने लोग भी है, you can check it at your own home, own office. यहाँ पे कोई स्टाफ बैठा है तो स्टाफ बार बार वो छोड़ के चला जाएगा, फिर नया स्टाफ लेके आओ, फिर ट्रेन करो, फिर चला जाएगा, तो वो ज्यादा रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हो जाती है, बहुत पैसे टाइम खर्च हो जाता है। Thanks. And there is still a difference between S6 and S8. There's still a difference, right? Although both are good, there's still a difference. हाँ, so जितने भी अभी S1, S2, S3, S4, जैसे अगर हम सिर्फ S6, S7 की बात करें तो S6, S7 में चार एनर्जी फील्ड्स हैं। Sir, I have a question. हाँ, yes, Sorry. I have a question. I'm right now. I just got driving back, so I just landed up in my lawyer's office. So I have one of the best lawyers in Chandigarh ji, and they have this directions. अभी आजकल क्या हो रहा है कि काम एकदम रुकता जा रहा है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, इनका भी ऑक्यूपेशन ही है, बिजनेस ही कहूँगा मैं। तो एकदम से, वैसे तो मैं अच्छा कहता हूँ, मैं तो उनको कहता हूँ अच्छा हुआ क्राइम कम हो रहा है, लॉर्ड सुधर है, इसके लिए मतलब आपके पास केस नहीं आ रहे हैं। But otherwise they are here, so they have this question because these are two guys. I hope if you can see me. Yes. Because I'm not visible otherwise. So Mr. Brad है, Mr. Dheeraj Parihar. Hi. So they are हाँ जी। So इनका एक क्वेश्चन रहता है कि एक ये इस डायरेक्शन है आपकी कौन सी, और एक दूसरी साइड पे सीट होती है, दो पार्टनर्स हैं ये। राइट। इनका जरा क्वेश्चन है सर, इधर हम आज देम ब्राड साहब लिए करिए, कर लो कोई बात नहीं, आप करिए बात। सर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो किस डायरेक्शन में ज्यादा ठीक रहेगा? फेसिंग साउथ डायरेक्शन है हमारी। देखो, आप अगर लॉयर हो ना, तो मैं आपको बोलता हूँ कि लॉयर को कभी भी साउथ वेस्ट से बैठना ही नहीं चाहिए। ऐसे अभी थोड़ा अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, एक क्वेश्चन मैं ले रहा था बाद में, पर देखिए ट्रेडिशनली ऐसे कहा गया है कि साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए ओनर को, कि वो ताकत की जगह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साउथ वेस्ट की जो दिशा है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्किल, लिखा हुआ है स्किल, मतलब ये ना, ये आपको स्किल देती है, आपको महारत देती है, आप जो भी कर रहे हो। तो जो राजा महाराजा होते थे ना, जब वास्तु, पहले वास्तु वाज ओनली फॉर किंग्स, राजा लोग ही वास्तु करते थे, और हमेशा राजा के छोटे भाई को, राजा के एक भाई हमेशा वास्तु करता था और एक भाई रूल करता था, ऐसे अलग अलग, वो किसी को देते नहीं थे नॉलेज। लेकिन जब ये लोकल लोगों के पास आया, तो क्योंकि राजा कभी भी साउथ वेस्ट में कभी नहीं बैठा, राजा हमेशा बैठा था साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में। देखो वहाँ पे लाल में देखो एसएससी लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ, मतलब राजा को रूल करना है। वो स्किल लेके क्या, उसको स्किल ही नहीं है, उसके स्किल के सब लोग पड़े हुए उसके पास, तो वो बैठता था पावर की जगह पे, ताकि उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सके। अगर वो नॉर्मल लोगों को भी बिठा देते स्ट्रेंथ में, तो सब राजा से झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे आपने शोले पिक्चर देखी है, तो शोले में जैसे एक इंसान मटका बना रहा है, एक वो कापूस काट रहा है, तो क्या होता है कि ये जो जॉब है ना, इंडिया इज अ प्लेस वेयर लेबर जॉब करते हैं हम लोग, लेबर स्किल सब जगह पर लेबर्स की। तो जो स्किल है, लेबर की स्किल अगर अच्छी होगी, और पहले क्या होता था कि जो आदमी बना रहा है, जो मटके बना रहा है, जो कापूस काट रहा है, वो खुद ही ओनर होता था, वो खुद ही ओनर है बिजनेस, और खुद ही काम कर रहा है, खुद ही मटके बना रहा है। करेक्ट। अगर उसकी स्किल अच्छी होगी, अगर उसमें हुनर आएगा, तो ज्यादा माल बिकेगा उसका, क्योंकि कुछ नया करेगा, अच्छा करेगा, ड्यूरेबल होगा, तो ज्यादा पैसे आएंगे। तो जब भी वो साउथ वेस्ट से बैठेगा तो पैसे बढ़ेंगे। पर अभी आज के सिनेरियो में मान लो फॉर एग्जांपल, अभी नीलकमल खुर्ची वाला है, तो जो नीलकमल का जो ओनर है वो थोड़ी साउथ वेस्ट, क्योंकि वो तो मशीनें बना रही है खुर्ची, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर प्रोडक्शन मैनेजर को मैं बोलूंगा कि तू प्रोडक्शन संभाल, और तेरे पास स्किल होना चाहिए कि कौन सा माल सही बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट करके सही प्रोडक्शन करके लेके आएगा। पर जो ओनर है, ओनर को बैठना चाहिए मे बी ईस्ट वेस्ट, जो भी, फिर वो जिस प्रोफाइल में है उस तरह बिठा सकते हैं। अब जैसे लॉयर्स हो आप लोग, तो लॉयर में क्या होता है कि लॉयर के लिए सबसे, क्योंकि मैं बहुत लॉयर्स के लिए काम करता हूँ बॉम्बे में, तो जो मैंने जितना समझा, मैंने देखा कि उन लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारी आंख ऐसी होनी चाहिए कि जो किसी को ना दिखे, मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है, या जैसे कुछ केस होते हैं जहाँ पे कि एक छोटी सी चीज भी है ना, कुछ बड़ी चीज दे देती है, मतलब अगर ध्यान से देखे तो उसी में सारा आंसर होता है। तो दे नीड टू हैव आई, वो डिटेलिंग की आंख होनी चाहिए। तो वो जो आंख है ना डिटेलिंग की, ये आपको आती है वेस्ट से आती है। वेस्ट डायरेक्शन है, नहीं डायरेक्शन प्रॉफिट की डायरेक्शन है, और वेस्ट डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन है।
और वेस्ट में एक देवता है विष्णु। जैसे वेस्ट में जब हम बात करेंगे तो विष्णु, जैसे मैंने अभी गंधर्व भृंगराज बताया, तो वेस्ट में विष्णु वरुण एनर्जी बोलते हैं, वरुण। अब वरुण का फंक्शन क्या है? वरुण हैज 1000 आईज, 1000 आंखें उसकी, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। तो जो भी आदमी उस जगह बैठ जाता है, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट है वो सारे मैंने उनको कुंडली के हिसाब से बिठाया, पर वेस्ट में काफी लोग ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा है कि वेस्ट में बैठ जाते, उनकी कुंडली सपोर्ट करती है उनको। तो जब भी मैंने उनको वरुण में बिठा दिया है, वेस्ट में बिठा दिया, तो ऑटोमेटिकली उनकी नजर, ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उनको 4 चीज दिख जाती है। उस वजह से उनका बिजनेस बढ़ गया है। मतलब वो लोग कहीं और नहीं जाते, यहाँ आके रुकते हैं। और स्पेसिफिकली अगेन, सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्लाइंट्स आर नॉट कमिंग इन, राइट? ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड क्लाइंट्स मतलब है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। खत्म आफ्टर मार्च 2020। करेक्ट। सो खत्म होना इज ऑल्सो लाइक, क्योंकि चला गया, सब खत्म हो गया तो अगले SSW भी आ जाएगा। हो सकता है कि अभी कैसे चेक करना है, तो जैसे आपकी जो भी ऑफिस होगी या आपका घर होगा, अगर आपने वास्तु करवाया, या एक बेसिक तो सबको पता होता है कि साउथ में से बैठना है, तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आप जो कंपास, जो लोग है ना, कंपास को आपको अभी इसको अलाइन करना है। हाँ, इसको अलाइन कर लिया, ऑन कर दिया ना, तो आपको पहले अलाइन करना है उसको, क्योंकि क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो अलाइन करना होता है उसको। ऐसे 8 घुमाना, 8, हाँ, ऐसे 8 आपने घुमा दिया तो अलाइन हो गया। उसके बाद जब आप कंपास चेक करोगे ना, तो आपके ऑफिस के अप्रोक्सीमेट सेंटर में जाना है। आपके ऑफिस का जो भी अप्रोक्सीमेट सेंटर है, उस सेंटर में जाके आपको खड़े रहना पहले। पूरे ऑफिस क्या, आपके केबिन के नहीं, पूरे ऑफिस के सेंटर में। पूरा ऑफिस, यस डेफिनेटली वी आर इन द सेंटर नाउ। हाँ, तो अभी मुझे बताइए कि कौन से डिग्री पे, क्योंकि आप कहीं भी फेस करोगे ना तो नॉर्थ वही रहने वाला है, तो डिग्री वही रहेगी। तो अभी ये जहाँ बैठे हुए हैं वो कौन सी डायरेक्शन है, मतलब कौन सी डिग्रीज आ रही है? नॉर्थ वेस्ट 305 डिग्री। अगर सेंटर पॉइंट से देखें 305 डिग्री बताया आपने? यस। अभी 305 डिग्री देख ले, क्या है यहाँ पर? ये देखिए, ये जो 305 है ना, नॉर्थ वेस्ट 328 नहीं, वहाँ पे सेंटर पॉइंट 320 नॉर्थ वेस्ट। सेंटर पॉइंट 320 नॉर्थ वेस्ट। 320 में बैठे ना ये? यस, नहीं सिटिंग नहीं, स्टैंडिंग है, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द चैम्बर। हाँ, no, what I want, see, what I want that they should go in the center. Wait, if I can show an image, just a moment. I'll just share one image. I'll just show it over here. जैसे मान लो भी ये इमेज है, यस, जैसे अभी ये फैक्ट्री की इमेज है, तो ये जो पूरी फैक्ट्री है स्क्वायर है ना, एक मिनट, ये पूरी स्क्वायर फैक्ट्री है, देखो ये है ना, तो ये फैक्ट्री का सेंटर है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे खड़े रह के, जैसे अभी ये जो है इनका केबिन यहाँ पर है, देखो, तो ये मुझे बताइए कि आपका केबिन यहाँ से कौन सी डिग्री पे आ रहा है? हमारा जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है जी, दूसरे में देखे तो 224 साउथ वेस्ट, 225 27 साउथ वेस्ट, 227 the sitting area of me, yes, 227। तो 2 लोग हो आप लोग ना, और दूसरे जो कहाँ बैठे हुए हैं? yes, सेम ही है। पराग जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे, नहीं तो क्या है कि सबकी प्रॉब्लम्स काफी रहती हैं। 227 अगर जेनरिक रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, सो विल टेक अप क्वेश्चंस। एक थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ तो थोड़ा और देखने में इजी हो जाएगा, इन लोगों को एक्चुअली इजी हो जाएगा। थोड़ा एक 2-4 केस स्टडीज में ले लेता हूँ, उसके बाद देन विल टेक अप द क्वेश्चन सेशन के लिए ओपन कर देंगे। ओके जी, ठीक है। सो आप तब तक सोचिए, मैं आपको पूछूंगा, आपका हर एक जितने भी लोग लॉगिन है ना, सब लोग सोच सकते हो कि एग्जैक्ट इश्यूज क्या है। विल टॉक अबाउट इट, बट लेट अस जस्ट कंप्लीट दिस। यस सरबजीत जी। सो अगेन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इज अ डायरेक्शन। जैसे स्पेस एलिमेंट का काम है कि या तो स्पेस एलिमेंट फायदा देगा, प्रॉफिट देगा, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो डिप्रेशन में डाल देगा। डिप्रेशन मतलब कि जब कुछ काम नहीं होते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इट हैज अ पावर टू टेक यू इनटू डिप्रेशन। तो ये 8 और 16 डायरेक्शन चेक किया हमने। अभी ये तो एक फैक्ट्री या कोई भी एक ऑफिस है, जैसे मान लो आपकी ऑफिस है, तो
कहाँ पे देखने से क्या चीज़ होगी, ये मैंने एक बना दिया है, केस स्टडी जैसे बना दी है मैंने। जैसे मान लो कि एनएनई जो है, जो अगर आप देखो ये एक प्रॉपर्टी है, स्क्वायर प्रॉपर्टी है, एक फैक्ट्री है एक्चुअली, मेरे क्लाइंट की, मसाला बनाते हैं ये। पर जब भी सेंटर में कंपास शुरू करेंगे, जब भी सेंटर लोकेशन में जब भी कंपास को ऑन करेंगे, तो जो भी डायरेक्शन एनएनई आ रहा है, जो भी एनएनई मतलब जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ब्लू में, तो इस दिशा में जब भी गड़बड़ होगी ना, तो क्या होगा, इनको जो प्रॉब्लम्स फेस होंगे वो होंगे कि जो भी कोटेशन भेज रहे हैं वो यूजुअली एक्सेप्ट नहीं होंगे। मतलब हेल्थ ऑफ द फैक्ट्री और जो भी स्टाफ होगा ना, वो कंटिन्यूसली बोलेगा अरे आज हम छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि हम बीमार हैं, या प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाएगा। सो दीज आर, अगर ऐसे इश्यूज हैं किसी के, मैं नहीं कह रहा कि ये आप चेक कर लो अभी, मैं कह रहा अगर ये इश्यूज हैं आपके तो यहाँ चेक करोगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्योंकि ये पानी की दिशा है, तो यहाँ पे पानी कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, और यहाँ पे अगर फायर की कोई, जैसे लाल कलर की कोई चीज़ है, क्योंकि फायर और वाटर अपोजिट है, तो अगर लाल कलर की चीज़ें यहाँ नहीं अगर होगी तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, क्योंकि फायर नहीं चलता, क्योंकि पानी और वाटर एनिमीज है, तो आग को बुझा देगा, पानी भी खत्म हो जाएगा आग को बुझाने में, तो ऑटोमेटिकली वो हेल्थ, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो हेल्थ को इम्पैक्ट करना, क्योंकि हेल्थ की डायरेक्शन है, इम्यूनिटी की डायरेक्शन है, तो इम्यूनिटी की एनर्जी वीक हो जाएगी। ओके, सो जैसे यहाँ पे आप रेड को रिप्लेस करके ब्लू कर दोगे, यहाँ पे डस्टबिन है, डस्टबिन को थोड़ा सा हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी आपकी बिल्ड हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जो भी आप रेट्स दे रहे हो, जैसे कभी भी लोग बोलते हैं कि अरे हम अच्छा बेच रहे थे, फिर हमारे 4 दुकान छोड़ के नए मिठाई वाले आ गए या नई शूज़ की दुकान आ गई, जब से ये आया हमारा बिजनेस तो बंद हो गया पूरा, तो वो कंपटीशन को सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उनके इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। मूव नेक्स्ट। पैसा बनाने का असली तरीका आइडिया ही है। पैसा और कैसे भी नहीं बन सकता है। अगर पैसा अगर अच्छा बनता है तो अच्छी आइडिया होगा ना, तो ही अच्छा पैसा बनता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अगर आइडिया सही है तो पैसा बनेगा और बनेगा। तो ये जो आइडियाज है ना, ये आती है नॉर्थ ईस्ट से, जो मैंने हाईलाइट किए। तो आपके घर के या आपके ऑफिस के इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, अनवांटेड स्टोरेज है, बहुत चीज़ें अगर स्टोर करके रखी है आपने, तो आइडियाज फ्लो होनी बंद हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा खाली कर देंगे, और यहाँ से भी क्योंकि वाटर डायरेक्शन है, यहाँ से भी कुछ दाल हटा देंगे। तो यूजुअली क्या होता है कि इंडिया में सब लोग नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल रखते हैं, जो भी वास्तव में मानते हो क्या मंदिर रखते हैं यहाँ पे, पर मैंने देखा कि मंदिर में ना, अभी इंडिया में लोग मंदिर में लाल कपड़ा रखते हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टेम्पल है और आपने लाल कलर का वो नीचे रखे, उसके ऊपर भगवान को रखा हुआ है, तो लाल कपड़ा हटा देने से भी आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है और आइडियाज अच्छे आने लगते हैं। ये इतना पावरफुल, इतना सेंसिटिव एरिया है ये, कि मंदिर के अंदर भी लाल कपड़ा रखेंगे, वो चेंज करेंगे तो बेटर है। आप गोल्डन से कर सकते हो, वाइट से कर सकते हो, ब्लू से कर सकते हो, सिल्वर से कर सकते हो, राइट। अभी ईस्ट है ना, ये ग्रीन में मार्क किया है, ईस्ट इज अ डायरेक्शन फॉर एयर एलिमेंट, ईस्ट हवा की डायरेक्शन है। तो जिन कंपनियों को, जो कंपनियां कहती है ना कि हमें अलग अलग सिटीज में ब्रांच ओपन करने हैं, जैसे मेरे एक क्लाइंट को, उन्होंने मुझे यही कहा था कि उनके 2 ब्रांचेस थे, बॉम्बे और दिल्ली में। उन्होंने कहा हमें और ब्रांच सेटअप करना है, इस साल का टारगेट ये है। तो विद इन दैट ईयर हमने उनकी 9 ब्रांचेस शुरू हो गए, 9 ब्रांचेस। तो हमने तभी क्या कहता है कि इसी डायरेक्शन को बूस्ट किया था, क्योंकि ये डायरेक्शन है, ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर कनेक्टिविटी, ये लोगों के साथ आपको कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्शन जब होगा तो लोग उनको पता चलेगा आपके बारे में, और फिर वो बोलेंगे चलो कुछ कर सकते हैं क्या। सो अगर आपको फ्रेंचाइजीज ओपन करनी है, या अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे एक्सपांशन करना है, या सिटीज में करना है, या आपके एरिया में आपको तीन शॉप्स चाहिए, स्टोर चाहिए, या अलग अलग सिटी में, वर्ल्ड के अलग अलग सिटीज में चाहिए, तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप रख देंगे तो भी काम हो जाता है। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज जाता है, बेसिकली अब अपना सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है कि उसको पता है अभी कहाँ पे क्या चीज़ है, पर हम उस एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इस डायरेक्शन में वर्ल्ड मैप भी लगा देते हो, अगर आप जो भी ड्रीम है आपका, मान लो आपका ड्रीम है कि हमें हमारे एरिया में करने हैं 3 शॉप, तो वो उस एरिया का आपने मैप्स निकाल दिया और वो 3 लोकेशंस आपने मार्क कर दी कि यहाँ चाहिए, और ईस्ट में लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली वो ईस्ट डायरेक्शन उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। इट्स वेरी पावरफुल। आप देखो, चाइना इज इन द ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चाइना जो है ना, चाइना वर्ल्ड मैप में, चाइना पूरे वर्ल्ड के ईस्ट में है ना, चाइना पूरे वर्ल्ड के ईस्ट में, और यूएस पूरे वर्ल्ड के वेस्ट में। तो आप देखो, चाइना का जो प्रोडक्ट है ना, वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। वो है ना, 1 रुपए की पिन भी बनाता है और आईफोन भी बनाता है। सो इट इज इन एवरी कंट्री, चाइना इज कनेक्टेड टू एवरी कंट्री, उसके प्रोडक्ट हर कंट्री में जाते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड के ईस्ट में है, राइट। अभी ये
यूजुअली जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनके लिए डायरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चार जो है ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ये नेचुरल डायरेक्शन है। ये अगर हम एस्ट्रोलॉजी मिक्स कर देंगे तो ये उसकी नेचुरल डायरेक्शन है। तो जब भी यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स रखते हो या यहाँ पे आपके विजन बोर्ड लगाते हो कि मुझे इस कंट्री में करना है, उस कंट्री में करना है, तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। और इस डायरेक्शन में यूजुअली यहाँ पे अगर ब्लू चीजें होगी, ब्लू क्योंकि अग्नि की दिशा है, तो यहाँ पे ब्लू अलाउड नहीं है, क्योंकि ब्लू अग्नि मतलब फायर है, पैशन है। तो उस पैशन से आप काम करते हो। जैसे यहाँ पे कुछ ब्लू कलर का आ जाएगा या इसको वीक कर देगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। प्लस क्लाइंट कन्वर्जन, यहाँ से गुडविल भी बनता है कि आपकी मार्केट में गुडविल क्या है। अगर गुडविल अच्छी है तो ये डायरेक्शन सेट है, अगर गुडविल में प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्शन में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। जैसे इंडिगो का भी शूट हो, वायरल वीडियो शूट हो गया था कि एक स्टाफ ने कुछ बदतमीजी की, तो देयर वाज सम प्रॉब्लम, तो उनके गुडविल पे इम्पैक्ट हुआ वो। तो इस मींस कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए गुडविल पे इम्पैक्ट हुआ वो। और क्लाइंट कन्वर्जन, ईस्ट साउथ ईस्ट एंग्जाइटी की डायरेक्शन है ये। तो जब भी यहाँ पे लोग आपके बहुत सोचेंगे कि मैं इसे बिजनेस दूं या ना दूं, आपसे कोटेशन निकालेंगे। मेरे एक क्लाइंट थे वो, जिनका ट्रैवल एजेंसी थी उनकी, तो उनके पास लोग ना 1.5 महीना की अपनी आइटिनरी प्लान करते थे और फिर किसी और से बिजनेस करवा देते कि मेरे अंकल ने खोला है तो हम वहाँ जा रहे हैं या हम अभी कैंसिल कर रहे हैं। तो पूरा उनका 1.5 महीना उनको प्लानिंग में चला जाता। सो लोग आते थे, पूरा वर्किंग आउट करते थे, लेकिन कन्वर्ट नहीं होते थे। तो इसको सेट करने के बाद कन्वर्जेशन होकर शुरू हो गया अभी 2 सालों में। और क्वालिटी मैनेजमेंट भी यही से होता है। अगर प्रोडक्ट सही नहीं बन रहे तो क्वालिटी मैनेजमेंट भी इसी डायरेक्शन से चेक करते हैं। अगेन ये साउथ ईस्ट, क्योंकि मैंने कहा पेमेंट रिकवरी भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी है, पेमेंट रिकवरी भी। और अगर बहुत ज़्यादा लीगल केसेस आपके ऊपर, मतलब लेबर, जैसे लेबर क्लास ने कुछ इश्यूज कर दिया है, वो क्रिएट कर रहा है, या कुछ बहुत ज़्यादा लीगल केसेस है, कोई फैक्ट्री में किसी का हाथ जल गया, हाथ कट गया, एनी लीगल केसेस, तो यहाँ पे जब भी चेक करेंगे तो ये यहाँ से आते हैं लीगल इश्यूज, क्योंकि फायर की डायरेक्शन है। तो ये आपके लाइफ में गर्माहट ये बोलो या गुस्सा बोलो या वो फ्रिक्शन बोलो, फ्रिक्शन लेके आता है। तो जब भी फ्रिक्शन का लीगल केसेस से फ्रिक्शन आता है तो सारा यहीं से होता है। इसको बैलेंस कर देंगे तो मैनेज होना शुरू हो जाता है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की जगह है। यहाँ पे जो भी डिसीजन लेता है आदमी, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सुसाइडल टेंडेंसी को इंसान की या कंपनी की, जो कंपनीज एनपीए हो गए, एनपीए कंपनीज होती है, तो जब यहाँ बैठते हो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में और यहाँ से डिसीजन लेते हैं तो एनपीए होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके। इट्स अ जोन ऑफ डिप्रेशन। ये हम सबने देखा है कि रिलेशनशिप स्किल की दिशा है। ये डायरेक्शन स्किल देता है आपको, और ओनर को बैठना चाहिए वैसा नहीं है। ये डिस्पोजल है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर खर्चा होता है, अगर आपको लग रहा है कि हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा मशीनरीज बिगड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्लाइंट चले गए, हमारे जो क्लाइंट थे सब चले गए, अभी एक भी नहीं है, या अगर आपको लगता है कि स्टाफ बहुत ज़्यादा छोड़ के जा रहा है या बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आ कुछ नहीं रहा है, सिर्फ खर्चा, हर खर्चा रेडी रहता है हमारे लिए, तब भी ये डायरेक्शन चेक करेंगे तो खर्चे बैलेंस हो जाते हैं। ये है अट्रैक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट। मतलब जैसे मान लो शाहरुख खान है, अब शाहरुख खान को आप लाइक कर सकते हो या हिट कर सकते हो, पर उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, वो है। तो ये डायरेक्शन है ना, ये क्लाइंट के माइंड में, जब भी आप कोई स्टोर में जाओगे या अगर आपकी कोई खुद की स्टोर है तो आप चेक करोगे तो नॉर्थ वेस्ट में जो सामान रखा होगा ना, यूजुअली वो ज़्यादा बिकता है, वहाँ पे रनिंग आइटम ज़्यादा बिकती है। तो जब भी यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, या जिस प्रोडक्ट की मार्जिन बहुत ज़्यादा है, अगर उनको यहाँ रख देंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ये निकलना शुरू होती है, ये मार्केट में जाना शुरू हो जाती है। और अगर ब्रांडिंग करनी है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, ब्रांडिंग करने के लिए हमें चाहिए कि सब लोग जाने हमको, तो वो ये साउथ से होता है। दिस इज अ प्लेस फॉर सेलिब्रिटी बोल सकते हैं इनको, या ब्रांड्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना तो ये साउथ का काम है। और रिकग्निशन, अभी ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री ले लो। अब नॉर्थ ईस्ट की एंट्री आप ले लो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ना, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ना 2 एंट्री है। एक है मनी की, यस मनी सेविंग्स देता है, वो पैसा बढ़ाता है, बैंक सेविंग्स बढ़ाता है। और सेकंड जो एंट्री है ना, वो सेकंड एंट्री है लॉसेस की एंट्री है। तो आप देखो जितने भी फैक्ट्रीज है पुराने, क्योंकि नक्शे पे कोई काम नहीं करता था पहले, अभी की जो जनरेशन है जिनको मैंने ट्रेन किया, मेरे स्टूडेंट सारे नक्शे पे काम करते हैं। अभी काफी वास्तव में नक्शे पे काम करना शुरू हो गए।
पर पहले नक्शे पे काम नहीं करते थे, फैक्ट्री पे गए, ऑफिस में गए, स्टोर में गए और कहते थे नॉर्थ ईस्ट एंट्री ओपन करो। अभी नॉर्थ ईस्ट में जब एग्जैक्ट नहीं देखते ना, अगर 3-4 डिग्री भी लेफ्ट एंड राइट हो जाता है तो लॉस एंट्री अंदर आ जाती है। और फिर आप देखोगे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, जैसे कलकत्ता में मैं गया था तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री वाली मैक्सिमम फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि सब वहाँ पर लेबर के इशूज होते थे कि सबने कोर्ट केस कर दिया, लीगल इशूज कर दिए, क्योंकि वो एंट्री लॉस की एंट्री है, लॉस होकर सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ गई। सो इट्स अ मिथ, अच्छी है पर एक प्रॉपर नक्शा देख के करेंगे तो ये प्रॉपर्ली सेट हो जाती है। हाँ, और राजा कभी साउथ से कभी नहीं बैठा। राजा का जो प्रोफेशन है, वो जो काम करता है, जैसे कोई अगर कपड़े का व्यापारी है तो उसको नॉर्थ में बैठना चाहिए। अगर जैसे रियल एस्टेट एजेंट है, उसका काम है लोगों से जुड़ना, वो लोगों को जोड़ता है, तो जोड़ने का काम कौन करता है? ईस्ट करता है। सो रियल एस्टेट एजेंट हैज टू सिट इन ईस्ट, अ लॉयर हैज टू सिट इन वेस्ट, एक सेलिब्रिटी हैज टू सिट इन साउथ और मे बी हैव अ बेडरूम इन साउथ। तो उनको इन डायरेक्शंस की एनर्जी ज्यादा लेनी चाहिए। कोई अगर समझो वजीर है, कोई फाइटर है या बॉक्सिंग कर रहा है, तो उन लोग को साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जो कि दिशा पावर की है, स्ट्रेंथ की दिशा है, वो वहाँ वो ज्यादा बैठेगा, वहाँ सोएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये नेचुरली आप एनर्जीज को यूटिलाइज कर सकते हो। ये केस स्टडी थी जहाँ पे एक फैक्ट्री की नॉर्थ ईस्ट एंट्री थी, पर ये जब हमने काम किया तो उनके जो भी लेबर के इशूज थे काफ़ी सारे बंद हो गए। और ये बॉम्बे की फैक्ट्री है और 1.5 महीने में इनका मतलब जो है टर्नओवर ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ये वो है। और ये और एक मेरे क्लाइंट है, एक से भी एक वीडियो टेस्टिमोनियल है, अभी एक लगा देता हूँ। आपको आवाज आ रही है सब लोग को? या क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ओके। एक्चुअली मुझे नहीं आ रही, स्ट्रेंजली आपकी आवाज क्लियरली आ रही है, बट वीडियो की नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, मुझे नहीं आ रही, आपकी क्लियरली आ रही है। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। So I'm there in landing business last from 20 years, since 2001 till date. So I'm Yes. 20 years. Okay. In the business. We have shifted to a new office, much bigger office, okay, post this pandemic. And post shifting, we were facing some challenge. Exactly like I can see lots of deals happening, but it's not getting converted. So it was just back of my mind, let's get the Vastu connected. And when you hear the word called Vastu, there is only one name come in my mind, is Parag Awasthi. So I called up Parag, and Parag was there on immediate basis because we shared a very good rapport with him. He was there within a few hours of time just to see where exactly we are going wrong. So I mean there were few corrections that he did, जो समझेगा भी नहीं देखेंगे correction हो चुका है, okay. And trust me, it is now 25-30 days, and I am in a position to deliver a mega blockbuster month as December 20. Here people are crying in terms of pandemic lockdown. Here we are, creating a history. So what more should I say about Parag? I mean, he's just a magical man. So एक वास्तविक ऐसा चीज था ना, which I was not used to believe. But एक दिन ऐसी trial and error के लिए मैंने पराग को बोला, boss, I am facing this issue. And that was got sorted within a 1 week's time. Some payment was stuck. From that day onward, I started blaming Parag. So whenever I am stuck, I try getting solution from Parag. Just a simple correction. तो 200-300 रुपये का एक छोटा सा हाथी लेके हमने कॉर्नर पे रख दिया। एक हफ्ते बाद हमारा पेमेंट आ गया। So this is the way we got our money back. It sounds funny, but this happened. मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम मिला तो मेरे को लगा ये महंगा है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करते हैं। बट बाद में देख रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम के सामने जो सोल्यूशन मिल रहा है, पैसे कुछ भी नहीं है। In terms of satisfaction, like we are quite satisfied in terms of revenue what we see in future. It's almost like I was expecting 100% kind of result, but मैं तो बोलूँगा 1000% result है. It's tenfold more than my expectation. So guys, if you guys are facing any personal and official challenge, Parag is just a call away. And trust me, he is one of the best person I have ever met. And very helpful nature. 24/7 is available for his client. Parag, thank you for your gesture and your kindly and timely treatment for my issues, and I'm sure that you will be helping lots of people going further, and keep your blessings rolling forward. Thank you. इनका पैंडेमिक में अभी वास्तु करने के बाद So I'm there in landing business last उन्होंने दिसंबर 2020 में भी पिछले महीने दे मेड मैक्सिमम सेल्स, क्योंकि पूरे साल का मैक्सिमम सेल अभी उन्होंने किया है। नए ऑफिस में शिफ्ट हुए तो बोले कर देंगे, मैं नहीं था यहाँ पे, तो फाइनली अभी हो गया। सो
काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं टेलीकॉम इंजीनियर और अभी मुझे लास्ट ये सारे अवार्ड्स हैं। मुझे लास्ट मुझे मिला था इकोनॉमिक टाइम्स से मुझे अवार्ड मिला था अभी एज एन इंडस्ट्री लीडर। आई थिंक जून अगस्त सितंबर का अवार्ड था ये। यस, सो नाउ वी विल ओपन अप फॉर क्वेश्चंस। यस, तो किसी को कोई क्वेश्चंस है तो विल बी, अगर यहाँ पे आप कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। You can raise your hands and then we will start from there. My questions are. Can you hear me? My Yes. questions are little out of the context है। टाइम मनप्रीत जी बोलेंगे ICIP से थोड़ा MSCME से पीछे हट के रमन जी आदत है। The point is, I really want to know, is astrology linked with Vastu? Because जैसे कई business, sorry, I want to complete this question. There's this office which was run by my father, and when he passed away, I took over. तो उसमें when I took over, the business response we used to get earlier, it's somehow slowed down. और जगह वही थी, सब कुछ वही था, पर business कम होता चला गया, propositions मतलब बिल्कुल पास में आके डील्स रुक जाती थी, और भी हमारे जो से बिजनेस है उनसे। तो क्या उससे क्या वो आपके और किसी के ग्रह और वास्तु क्या मिसमैच भी हो जाते हैं? हाँ, होते हैं, क्योंकि देखिए जो आपके पिताजी की जो चॉइसेस थी वो अलग थी। उनको शायद में भी तीखा खाना पसंद होगा, अलग कलर के शर्ट्स पसंद होंगे, उनका डिसीजन मेकिंग स्किल अलग होगा, आपका अलग है। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच, उनकी अप्रोच, वो सारा अलग अलग, हर इंसान का अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनके प्लैनेट्स की जो स्ट्रेंथ्स होती है और जो प्लैनेट बेनिफिशियल होता है वो अलग होते हैं। जैसे मान लो कि अगर किसी का ईस्ट अच्छा होगा या सन, सूर्य प्लैनेट अगर अच्छा होगा तो वो ही इज गुड इन डेलीगेशन, तो डेलीगेशन ज्यादा करेगा। अगर किसी शनि अच्छा होगा तो क्या खुद काम करेगा, मतलब खुद, जैसे भी आप लॉयर्स को देख लीजिए, जब उनका शनि, क्योंकि वो ब्लैक कलर के कोट पहनते हैं, शनि का कलर ब्लैक है, अब देखो लॉयर्स के सारे कोट ब्लैक होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको खुद डिटेलिंग में जाना अच्छा लगता है, उनका स्वभाव है, नेचर है। तो जो क्योंकि मैं पहले एस्ट्रोलॉजी से नहीं करता था, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो इनिशियली पहले मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स बेचे, मैंने क्रिस्टल्स, पिरामिड सब मैंने काफ़ी बेचा। फिर मुझे एक साल में पता चला कि इसमें इतना रिजल्ट नहीं आता है, इस सही में कुछ काम होना चाहिए, वरना क्योंकि तभी मैं 32 ईयर्स का था, तो मेरा काफ़ी समय है, और अगर अच्छे से अपने को अगर सर्वाइव करना है यहाँ पर तो अच्छा काम करना पड़ेगा। फिर सिर्फ वास्तु करना शुरू किया, और जैसे कर्टन चेंज करना, डस्टबिन शिफ्ट करना, और फिर और एक साल बाद समझा कि जब भी कुंडली मैच करते हैं तो कुंडली मैच करने के बाद तो जादू हो जाता है। क्योंकि आपका, अगर मान लो कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, अगर 9 प्लैनेट में से कोई तो प्लैनेट है जो आपको पैसा दे रहा है और कोई है जो लॉस दे रहा है, कोई फ्रेंड ऐसा है जो फ्रेंड आपको हमेशा मदद करता है, और कोई फ्रेंड है जो हमेशा आपको गलत सलाह देता है, आपको पता है कौन है आपकी जिंदगी में। तो जब भी आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली देखो हर चीज आपकी अच्छी होने लगती है, क्योंकि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो। तो आपका जो प्लैनेट अच्छा है, उस प्लैनेट की डायरेक्शन, जैसे मान लो गुरु अच्छा है तो गुरु की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो अगर उसको मैं पावर दे दूंगा, स्ट्रेंथ दे दूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली वैसे लोग आपके आसपास आना, क्योंकि उस अभी डायरेक्शन का इम्पैक्ट बढ़ गया ना। अगर आप समझो इन्वेस्टर ग्रुप में घूम रहे हो कि सब इन्वेस्टर आपके सर्कल में है, तो आप भी 1-2 इन्वेस्टमेंट तो कर ही देते हो। करेक्ट, वी डू इट सर, वी खुद बातें कंस्ट्रक्शन भी करते हैं साथ में, तो हाँ, तो जो सर्कल में घूम रहे हो वैसा हो, तो वैसे उन्हीं प्लैनेट को बेनिफिशियल कर सकते हैं। यस। अच्छा, ये 2 साइंस चलती है साथ में, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी लिंक्ड रहता है कहीं ना कहीं, ये शास्त्रों के हिसाब से भी। यस। ओके, दैट्स व्हाट आई वाज ऑलवेज वंडरिंग कि एक जगह काम किसी का चलता है, वही उसी जगह पे हम जब बैठते तो वो काम क्यों रुक जाता है। सो अब समझ आया कुछ डायरेक्शंस की। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ट्राइड एंड टेस्टेड है ये। गुड सर, थैंक यू वेरी मच। I'll take care of it, बाद में बात। Yes. One more question related to this actually. Which I think is a very important question. Yes. Do you also consider planets like Pluto, Neptune? Because you might have heard of Greenstone logo. Okay. I have heard about him. Okay. He knows me. He's my good friend. He's my very good friend. Okay. I myself studied astrology. I won't say I'm an expert, but yeah, I also studied true astrology. So वो आपसे भी पूछना था. So you also consider them? Okay. Yeah, of course. Yes, I consider. Okay. जैसे एक एंट्री है N7 करके एंट्री है, which is the entry of Uranus. वास्तु में जैसे हमने देखा ना, जैसे वास्तु में हमने देखा N1, N2, N3, N4, तो N7 जो एंट्री वो यूरेनस की एंट्री है, यूरेनस प्लैनेट की एंट्री। ओके, थैंक यू। या पराग जी, हाँ,
This is Rajan from Coimbatore. Yeah, Rajan ji. Rajan ji, I am following you for last 2 to 3 months. I am attending all your sessions. Okay. And then my request too is that most of the sessions you are talking in Hindi only. I couldn't able to understand that. That is one thing I just want to share in the last session itself. That is one thing. And then we were running a design-based firm wherein which we will teach students 3D printing, and then we do services to companies as well. Okay. So due to this pandemic, we have shifted our office. We are right now working in home only. From this next month, we are planning to open our new office. So if we want to get a good setup, how I can set up a good office with your consultation? So that is my question. Yes. So what I'll do, I'll just drop in my number on the chat. Okay. And then you all can connect. So. Okay. So this is my number. You can just maybe WhatsApp me, and then we'll take it forward. Okay. I will but for you, you should ensure that southeast you should not have any toilets. Okay, southeast. Because your business is of designing, and designing is governed by Venus, and Venus is like southeast. Okay. So southeast needs to be, if you can sit in southwest, east, or something like that, it will be very, very beneficial for you. You will be really creative in that domain. Okay. It should be south facing or else east facing. Any facing, but in southeast. Okay. Thank you. Bye. Yeah. Yes. Anyone else? You can unmute yourself. Yeah, I will do. So I have a family business. We manufacture electronic appliances like switched mode power supplies. Since you're an engineer, you must be knowing this. Yeah. And cable TV equipment. So, like I told you before, we had ancestral issues. So even in that, there were some ancestral issues. So what would happen is I would make clients, with great difficulty, because we have huge competition from China and Delhi. So there would be a huge price difference. So usme bhi jo mere ho jate the clients, what would happen is my products would stop working when they would reach them, or they would short circuit ho jate the. This is the problem that was happening. Yeah. So I lost a lot of clients. Because you have an entry of. Bolo. I have an entry of west. But there's a toilet in southwest. The toilet is. Or kitchen in southwest. Kitchen is east, actually. Southwest में क्या है? Southwest में? Southwest में. Give me a moment. Yeah. I have it. 1 second. Southwest, we have these working tables where these employees they assemble things. So they are sitting in south of southwest. क्योंकि assembly correct नहीं हो रही है. Okay, they are actually sitting on the west side. It's a complex layout. Check out what is it. Are they storing their materials in south of south? What is happening in south of southwest? South of southwest. हाँ, दूसरा साउथ ईस्ट में ब्लू कलर है क्या? या वहाँ पे टॉयलेट है? साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, यस, कोने में टॉयलेट है. करेक्ट ना? हाँ, उसको ट्रीट कर दीजिए. उसके you can treat with the yellow tape. एक अच्छा ट्रीटमेंट्स मैंने बताया नहीं यहाँ पे. I'll just show you. Wait. I would request everybody to keep their questions short. Sir, काफी लोग हैं तो थोड़ा सा दूसरों का भी ख्याल रखें. Thank you so much. You can understand everybody is wanting to ask lot of questions, but just a request. Yeah. So, see now this is the remedy of sample remedy for toilet. जैसे यहाँ पे green tape से mark किया ना. Usually when we do professional consultancy, then we do it with a tape or with a metal. तो metal क्या होता है, flooring के नीचे चला जाता है. लेकिन अभी आप वहाँ पर होते हो, आपकी जो टॉयलेट है उसको येलो टेप से ट्रीट कर दोगे ना, ऐसे यू बनाकर. So this because you said there is a electrification problem over there. So this is governed by fire. तो फायर भी वीक है यहाँ पर. तो जैसे ये ट्रीट कर दोगे तो इश्यूज आपके सब कम हो जाएंगे सारे. और साउथ ईस्ट. हाँ. पेमेंट रिकवरी भी नहीं है कुछ भी.
हाँ तो वो भी साउथ ईस्ट से आती है. पेमेंट रिकवरी ऑल्सो कम्स फ्रॉम साउथ ईस्ट ओनली बिकॉज फायर ना जैसे शायद कोई पैशन से भी काम नहीं करता होगा कि इतना पैशन थक जाते होंगे लोग या मे बी कि बस हो गया आज के दिन में. Even I would feel that way. हाँ, so vitality, so there is a loss of vital energy. So ये सब वहीं से होता है. तो जैसे इसको ट्रीट कर दोगे तो क्या, बिकॉज टॉयलेट का फंक्शन क्या है, फ्लश करना. अभी आप उसमें पैसा डाल दोगे ना तो पैसा भी फ्लश कर देगा वो, और आप जो डालते हो वो हर चीज फ्लश कर देता है, सब फ्लश कर देगा. तो क्या एनर्जी है जो फायर एनर्जी, इसलिए फिर फायर एलिमेंट्स दे नेचुरली ट्राई टू बैलेंस देमसेल्व्स. जब फायर वीक होगी ना तो खुद को बैलेंस करने की कोशिश, नेचुरली वो बैलेंस करने की कोशिश करती है. तो क्या होता है, पहले शॉर्ट सर्किट होते हैं, आपको लगना शुरू हो जाएगी, कभी घुटने में लग गया, कभी यहाँ लग गया, वो शुरू हो जाएगा. फिर आप ध्यान नहीं दोगे तो एक छोटा सा स्पार्क हो जाएगा, फिर ध्यान नहीं दोगे तो आग लग जाती है, क्योंकि वो फायर तो डे बाय डे वीक हो रही है ना, तो वो अपने को बैलेंस कर, नेचुरल बैलेंस की कोशिश करती है. सो टेप कर दो तो ये सॉल्व हो जाएगा. Thank you. And for the south of Southwest, what had you suggested just now? There might be some important stuff over there. Might be someone is assembling over there, and or some और वहाँ पे सोल्डरिंग वगैरह वहाँ करते होंगे, सोल्डरिंग कुछ इलेक्ट्रिक काम वहाँ कोई वहाँ बैठ के कर रहा है, या वहाँ पे कुछ स्टोरेज किया, उन सब चीजों का तो हटा दीजिएगा वहाँ से. 2052 to 215 डिग्री. Okay. Thank you very much. Right? Yeah, okay. Yes, so iPhone, Sony, RC, ये कौन है? मैं इनको ये अनम्यूट कर सकते हैं, मैं भी रिक्वेस्ट भेजा उनको. Hello, sir. Yeah, hello. Sir, I wanted to ask, we deal in manufacturing of furnitures, modular furnitures, and even manufacturing of pre-lamp boards. So I wanted to ask which direction is best for my husband to sit and even my son? Southeast. Southeast. Okay, yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Yes. Anyone has questions? That's it. Hi, my name is Jyoti Prakash. I have a question. I'm into business solar EPC. We do design and installation of solar power plant. And we have been in this sector for 5 years, but the business has not been as great as we want to be. So would like to understand what should be the direction where we should be sitting. कुछ ऐसा concern होना चाहिए. We have 3 partners. So how will you assess? I mean, can you assess? What is the actual problem, Jyoti ji? What is the actual problem that is happening? The problem is we are not able to close the deals. We get a lot of inquiries. But when it comes to closure, it always gets delayed. I mean, very hot deals also, it does not get closed. Is your entry from east? When you go out, it is towards sunrise. I think it is. I actually work from home. From the center of the property, no. See, from the center of the property, no, like your office. So, पूरे प्रॉपर्टी के सेंटर से चेक करोगे ना, तो when you go, your entrance is like when you go out, it is towards sunrise, towards east. और वो भी थोड़ा 11 डिग्री या 12 डिग्री 20 डिग्री राइट में है, मतलब ईस्ट सनराइज के थोड़े से राइट में आपकी एंट्री है. I think it is east. Yes, my office is north. I sit north. Yes, it is east. It is east? Yes. Correct. So what you should do, what you should do is you should treat the entrance. I'll show you how to treat it. Again, you also do it with a yellow tape only, and I'll show you how to do it. Okay, just sharing a photograph with you. क्योंकि ये एंजाइटी की एनर्जी बढ़ रही है वहाँ पे, तो जैसे ही इसको येलो टेप से ट्रीट कर दोगे तो आपके डील्स कन्वर्शन होना शुरू हो जाएंगे. फिर थोड़ा प्रॉफिट मेरे साथ शेयर कर देना बस. Okay, sure. We'll do a solar power plant for you also for free. Awesome. देखो हो गया ना, देखो. So ये एंट्री है, दिख रहा है, ये एंट्रेंस है एक्चुअली. Okay. तो ये एंट्रेंस पे ये जो काला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको दहलीज बोलते हैं. तो दहलीज के अंदर, घर के अंदर देखो येलो टेप लगाया हुआ है. ये ऑलमोस्ट 5 फिंगर जितनी ब्रॉड है ये. इसको जैसे आप यहाँ पे येलो टेप लगा दोगे एंड टू एंड पूरे दरवाजे पे, मतलब आपको कमिटमेंट फेलियर भी हो रहे होंगे बहुत सारे. मतलब कुछ लोग प्रॉमिस करते हैं पर पूरा नहीं करते, ऐसा भी हो रहा है क्या? Not like promise करते हैं, but वैसा सिचुएशन कन्वर्जन नहीं हो रहा है. कन्वर्जन नहीं होता है. ठीक है. ये कुछ आ जाते हैं, then they start thinking and things like that happen. Perfect. बस ये येलो टेप लगा दीजिए, काम हो जाएगा आपका.
Okay, I'll do this. हाँ, नंबर तो मैंने दे दिया है. I will. Yes, I'll get back. Yes. Soundra Rajan, you want to ask any question? No, na? Ah, yes. Who's अभिषेक जी, आपका आवाज कुछ नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, शायद नेटवर्क इशू है. हाँ, बोलिए कुछ. Can't hear you. Can you write in chat and send? Can you write down in chat and send? Yeah, till then, anyone want to ask another question? Done? We are done? हाँ, जो एंट्री वेस्ट से है तो उसका भी कुछ करना चाहिए क्या फैक्ट्री में, बिकॉज इश्यूज तो इतने सारे एंट्री वेस्ट से है ना, तो वेस्ट में जब आप, हाँ मिल गया आपको, तो देखो जब ये एंट्री वेस्ट से है ना, तो आप एंट्री सेंटर से चेक कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा राइट में ही है एंट्री आपका. वेस्ट से ना जब बाहर जा रहे हो तो एग्जैक्ट वेस्ट में नहीं है, थोड़ा सा राइट में एंट्री आपका एक्चुअली ये वाला. Am I right? Yes. Correct, no, yeah. Could you know that? But yeah, right. Correct. Because ये एंट्री ना डिप्रेशन की एंट्री है. This is the entry of depression. Correct. So basically, it's the energy of non-fulfillment of all expectations, loss of happiness की एंट्री है ये. इसको क्या करें, इसको भी आप येलो टेप लगा दीजिए. ये क्या करते हैं, आपने बोला प्रोफेशन क्या करते हैं? Manufacturing of power supplies, electronics. हाँ. So yellow tape will work. Yellow tape works. मतलब जो एंट्रेंस है उसके बॉर्डर पे एक येलो टेप आ जानी चाहिए. करेक्ट. Yes. Okay. 5 fingers this thing width की. Okay. 5 fingers width की. Perfect. और ज्यादा कुछ I mean जो स्पेस रखने की जरूरत नहीं, राइट, बिटवीन द येलो टेप एंड द बॉर्डर ऑफ द एंट्री. जस्ट खाली वो उसके सराउंड करनी चाहिए उसको ना टेप. I mean we don't need to put some gap between the yellow tape and this thing, right, the entry. हाँ. अच्छा चुप हो गया. There should be no gap. हाँ, proper. It should be end to end. Okay, so अभिषेक जी का क्वेश्चन आ गया. Money is draining, debt is increasing. Yes, lot of pending works, inquiries come, but work is not done. Not able to concentrate on work, staff and myself feel lethargic. Abhishek ji, is your entry south? When you go out, you're going towards south actually. Can you write a yes or no? I think when you're going out, it's towards south. We are going out towards south actually. यार इनका आवाज नहीं आ रहा है. Can I? Yes, Raman ji. Yes. I'm sorry. This is again out of the context now. No, please. वकील साहब के साथ बैठे हैं तो वकील साहब को नाराज करने कानून के रखवाले हैं ये. So Manpreet ji, I'm little sorry for this out. So sir has this question and he really wants to continue with that one thing of his. One question. So only one that we are skilled professionals. In which direction we should keep our face as a lawyer? क्योंकि जो एंट्री है वो डॉट सामने पीछे है, तो क्लाइंट यहाँ से अंदर आता है, हम लोग फिर अगर हम साउथ वेस्ट उस तरफ जाते तो वो उनकी तरफ बैक हो जाएगा हमारा जो पोजीशन ऑफिस का है. नहीं, फेसिंग देखो, फेसिंग मैंने देखा ये कि यूजुअली ऐसा भी ट्रेडिशनल में बोलते हैं कि नॉर्थ की तरफ बैठ के देख के बैठना चाहिए या ईस्ट की तरफ देख के बैठना चाहिए. वो भी मैंने देखा है कि डज नॉट वर्क एवरी टाइम. मतलब इट वर्क्स बट देयर इज मोर टू इट. जैसे नॉर्थ में बैठोगे तो नॉर्थ इज अ डायरेक्शन फॉर मनी एंड अपॉर्चुनिटी, तो पैसा बढ़ता है. अगर ईस्ट में फेस करके बैठोगे तो आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हो. अगर आप वेस्ट में देखोगे तो वेस्ट इज अ डायरेक्शन फॉर प्रॉफिट, फायदा. ये लॉयर की नेचुरल डायरेक्शन है. सो वेस्ट फेस करोगे तो भी आपको फायदा होगा कि फायदे की जगह है. और अगर साउथ फेस करोगे तो आपको फेम मिलता है, बिकॉज साउथ इज अ डायरेक्शन फॉर फेम. ओके, सो डोंट वरी अबाउट. दिमाग में मतलब
निकाल दीजिए, मतलब कि ऐसा होगा कुछ नहीं है, बिंदास जैसे कंफर्टेबल है बैठिए बस। वो कौन से लोकेशन में उसका पूरा गेम उसी का है एक्चुअली। Thank you very much. Thank you. Rest we'll catch up. Yes. Yeah, Surbhi ji, can you unmute yourself? Me? Yeah. Yes, please. What is the actual problem that is happening? No, Surbhi ji. Surbhi. Yes, I'm Surbhi here. My flat is not going for rent since 10 months. Yeah, can you share what is exactly happening? Like that might be either people are not coming to see, either people are coming but they are not converting, or no. Last week, person had come, but lock-in he was not agreeing with the locking period because we had a meeting where discussion was done for the redevelopment of the building. So I want to give only 1 year lock-in period, which he is not agreeing. Okay. So does this happen? Like usually, how many clients come? Like usually, do you feel that a lot of clients are coming to see the property? No. Since 10 months, nobody came. Only 2. This was the second person. Right. So, is there a storage in the exact north of your house? Exactly, I don't. Because it's empty over there. I have to see. So what I have. Just write down. Yes. So you have to go in the center of your property and you have to check exact north. So wherever there is exact north, if there is unwanted storage, then just clear the storage. Number 1. Okay. Number 2, if there is a kitchen over there, maybe microwave or maybe gas burner, then you place a green color mat below the gas burner. I'll show you how. I'll just share the picture with you. Okay. So this is like a green color mat or a green color stone you should put under the gas burner. Okay. If there is microwave or gas, so this will treat it. Okay. These 2 might be the issues in north. Yeah. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you. Yes. Are we done? Looks like. Yes, Manpreet ji. So be free to connect. I work with Rustam Ji Group. I also work with the buildings. I work for malls. I design malls. Malls में अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो I help with that. I've done vastu of schools, colleges, hotels, restaurants, second homes. So I worked a lot. And any question you want to ask, please feel free to ask. And अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, कन्वर्शंस नहीं हो रहे हैं, जो भी इशू है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम कैन बी इजीली, बहुत उसको इजी कर सकते हैं वास्तु से. मतलब आई वर्क ऑन अ टारगेट बेस्ड अप्रोच कि आपको मुझसे क्या करवाना है, आपको लाइफ में क्या चेंज चाहिए, उसी टारगेट बेस्ड अप्रोच पे मैं काम करता हूँ. सिर्फ वास्तु करना है करके हम काम नहीं करते, मैं काम नहीं करता, पहले से ही काम नहीं करता वैसे. सो क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम था और अभी 3 महीने बाद 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम अभी कम हो गया या नहीं है ना. सो यू ऑल्सो फील हैप्पी. सो वी वर्क ऑन दैट मॉडल एंड यू कैन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली. And thank you so much for being a very, very patient audience. Thank you so much. Your contact number, sir. Your contact number. हाँ, मैंने send किया chat में, मैं फिर से करता हूँ बेटा. And who all had registered, we'll send them Paradhi's contact details anyways, so you all will get it. Those who have not registered can take it from the chat box. Can I ask one more question? Yeah, please. You sit on the west of northwest, facing east. It's close to the entry if you got. वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अवॉइड ही करना है बैठना, क्योंकि इट्स अ डायरेक्शन फॉर डिप्रेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन में आदमी कब आता है जब उससे कुछ काम नहीं हो जाती. जब भी आपके एक काम नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ, तो आप बोलोगे अरे यार आई एम इन डिप्रेशन, मतलब यू लूज होप. सो व्हेनेवर यू सिट इन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यू वुड एंटर इनटू डिप्रेशन. मतलब अपने काम कम होना, तो थोड़े लेफ्ट में आके वेस्ट में आ जाओ, क्योंकि हार्डली 20 डिग्री शिफ्ट करोगे तो वेस्ट में आ जाओगे. वेस्ट इज द डायरेक्शन फॉर प्रॉफिट. वेस्ट में तो आ नहीं सकते, आई थिंक कहीं भी आ जाओ, मतलब उस डायरेक्शन से बाहर निकल जाओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ थोड़ा बहुत. हाँ, यस, नेसेसरी. ये ऐसा कुछ वहाँ पे रख के चेंज करके ऐसा कुछ नहीं हो सकता. नहीं, अब कचरे के बाजू में बैठेगा तो कचरे की स्मेल तो आने वाली है ना.
So don't fall into those traps कि ये रख दिया वो रख दिया तो ठीक हो गया, वैसा नहीं होता. And one more thing, I've applied for you this thing, this offer which you have is going on, जो आपका chart के direction. Abundance report was, yeah, the basic report which is for like 1,000 currently total. So with that, do you also consider Pluto, Neptune, other planets या traditional planets ही लेते हैं उसमें? उसमें मेरा कोर्स कर लो तो बता दूंगा. ठीक है? Thank you so much. Thank you, Parag ji. It has all been our pleasure to have you with us today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Parag ji. I'm sure a lot of people have a lot of questions, लेकिन time की थोड़ी सी problem है आज. Asti ji ने अपने ना contact details share की. I would like to thank everybody who has been with us today, and thank you so much once again. And a special thanks to our guest and all the people who attended. And we'll be sharing the recording of this also session, so it will be circulated to all those who had registered. Thank you so much once again. Thank you, Manpreet ji, and thank you everyone. Thank you, thank you very much. So thank you, much. Parag ji. बहुत धन्यवाद. Thank you, Parag ji. We will catch up. Thank you. Yeah, sure.